Now, dear students, in the continuation of the topic pollination, today we are going to discuss about the agents of the pollination. And as you all know, that plants has two biotic or abiotic, these two kinds of factors, or you can say agents for the pollination. है ना? Pollination means to uh, transfer of the pollen grains from the male part of the flower to the female part of the flower, and it needs to certain agency by help of which the pollen grain can be transferred from one place to another place. And majority of the plants use biotic agents for their pollination because it is easy for them, because a biotic factor means any insects, any animal through which pollen grains can reach one place to another place with the help of these organisms. And only very little amount of plants use the abiotic agents like water and air, all these things. So pollen grains usually come into the contact of the stigma by the help of these factors. Either it can be water, or it can be wind, और इट कैन बी ह्यूमन ऑल्सो, और इट कैन बी एनी एनिमल ऑल्सो. तो कैसे भी करके बेसिकली चीज़ ये इतनी सी समझनी है कि वो पॉलन ग्रेन्स जो हैं कैसे रीच करते हैं स्टिग्मा के ऊपर. एंड इट इज़ नॉट वेरी सर्टेन ऑल्सो बिकॉज दे आर डिपेंड अपॉन द फैक्टर्स. ठीक है, दे डिपेंड अपॉन द वाटर, दे डिपेंड अपॉन द एयर टू रीच अप टू द स्टिग्मा. तो दिस इज़ नॉट अ वेरी सर्टेन प्रोसेस कि ये पॉलन ग्रेन पहुँच ही जाएगा. It is very uncertain kind of process. So to ensure the pollination, nature also adapt itself. For example, if we are talking about the flowers which are pollinated by the wind, they produce lots of amount of pollen grain, so that अगर थोड़े से वेस्ट भी हो जाएं तो कुछ तो पहुंचेंगे ना वहाँ पर. तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो करते हैं. तो आई हैव जस्ट रिटन सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द विंड pollinated plant over here. They are also given in your book also. So I will give you in the PDF form also notes. So what are the characteristic features should be, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता भी है कई बार कि what are the characteristic features of air pollinated plant or water pollinated plant or other things. So what are the various features of it? So the various feature is that they are numerous in number. Why they are numerous in number? I told you just few minutes ago कि दैट मीन्स कि अगर न्यूमरस हैं, बहुत सारे हैं, तो विंड से इंश्योर तो नहीं होता ना कि विंड चली तो प्लांट पे पहुँचेंगे पॉलन ग्रेन्स में. दे मे बी लॉस्ट इन बिटवीन, डिस्ट्रॉयड इन बिटवीन. सो इफ़ दे आर लॉट्स इन नंबर तो कुछ ना कुछ, कोई ना कोई पहुँच ही जाएगा स्टिग्मा तक. And second thing is they are light in weight. What is the purpose of their weight is light? If their weight is light, ठीक है, if they are light in weight you can say, so it will be easy for them so that they can मूव थ्रू द विंड्स, है ना. मूव विंड्स के थ्रू वो मूव कर सकते हैं. अगर हैवी होंगे तो गिर जाएंगे. एंड इफ़ दे आर लाइट इन वेट दे कैन सस्पेंड इन द वाटर, इन द एयर. एंड ऑल्सो दे आर नॉन स्टिकी. आप समझते हैं अगर स्टिकी होंगे तो चिपक जाएंगे कहीं पर, तो हवा से वो कैसे जाएंगे. That way they are non-sticky. They are well exposed stamens. What do you mean by well exposed stamens? Means उनके stamens are large, long, sorry, large नहीं, long, and sometimes they are come out of the flower also. They have wings. Sometimes pollen grains also have wings, like in this case I have drawn here. This is the winged pollen grain of pinus plant. तो wing होने से भी क्या फ़ायदा होता है? They can suspend in the air. Feathery stigma is also there. Female part में अगर feathery stigma है तो it will be easy for them to suspend in the air. They are not colorful. They do not have fragrance. They do not have nectar, because कोई insect तो खाने आ नहीं रहा, तो इन चीज़ों का क्या करना है ना. तो ये चीज़ें उसके अंदर होती ही नहीं है. After then these characteristic features, there is a important diagram which is given in your book. This one. This is the important diagram also again. Why this is important? Because it has shown wind pollinated plant showing compact inflorescence and well exposed stamen. तो ये जो आपको दिख रहा है प्लांट, बेसिकली दिस इज़ अ कॉर्न कॉब, जो मक्का होता है ना वो है. एंड दीज टेसल्स मीन्स ये जो निकले हुए हैं, दीज टेसल्स व्हाट आर दे आर स्टिग्मा एंड स्टाइल्स, एंड दे आर continuously moving in the air when wind blows, and they trap the pollen grains. The pollen grains, suppose they are present into the air, एंड और ये इतने लंबे लंबे से हैं, यहाँ तक पहुँच जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, इनको ईजिली ये ट्रैप कर सकते हैं. तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है एयरबोर्न पॉलन ग्रेन्स का, कि दैट दे हैव द कैपेसिटी टू दे जस्ट गो बाय द विंड्स, उनके साथ जाते हैं. एंड ऑल्सो
they reach to the stigma, and stigma also have the special property that it has feathery, so that they can easily catch the pollen grains which are present into the, or you can say suspended in the air. So this is all about the air pollination. And important thing is it is given here about the corn cap, ये वाला, these lines, and this question comes into your exams that what are the tassels of the corn cap, मतलब ये जो hair जैसे निकले tassels ये क्या है corn cob में. तो आपको पता है कि these are the stigma and style and which move in the wind to trap the pollen grains. ठीक है, उनको trap करने के लिए होते हैं. Now next come to the water pollination, है ना, water pollinated plants जहाँ पर water के through pollination होता है. It is given here, and these are certain characteristic features, because pollination by the water is very rare in case of flowering plants. इसमें इतना ज़्यादा pollination जो है वो होता नहीं है, एंड मोस्टली मोनोकॉट्स में होता है. जनरली जो मोनोकॉट्स प्लांट्स होते हैं उसमें होता है, सब में नहीं होता ये वाटर पॉलिनेशन. एंड मोस्टली आपने अगर लोअर प्लांट्स देखे होंगे, इफ़ यू हैव नोटिस इन क्लास 11th ऑल्सो, that plants like algae, bryophytes and pteridophytes, these are the lower plants, and for their reproduction purpose in their life cycle they need water. ठीक है, बाकी चीज़ें तो ड्राई कंडीशन में हो जाती थी, but during the fertilization because their gametes are motile, if you have remember that they have flagella, इस तरह से होते थे ना gametes, तो they are motile, and for that purpose they need water to reach male gamete to reach from up to the फीमेल गैमेट. तो मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है इन लोअर एल्गा हो गया, ब्रायोफाइट्स हो गया, टेडोफाइट्स हो गया, इस तरह के प्लांट ग्रुप्स में. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द वेलिसनेरिया एंड हाइड्रिला विच आर फ्रेश वाटर प्लांट्स, and some marine grasses also like Joostera is also present. All these are aquatic plants. But students, one thing you have to also notice, or you can say you have whenever you take the reading of this book, you find that not all the aquatic plants use water for their pollination. Even though they are present into the water, they grow into the water, but it doesn't mean that they always need water for their pollination. For example, they have given like water hyacinth and water lily, these are two plants. And the what is the characteristic features of these plants, that these flowers emerge out of the water, है ना, बाहर नीचे तो उनकी रूट्स हैं, बट ये लेवल पर आ जाते हैं, पानी की सरफेस पर आ जाते हैं. एंड नॉर्मली दे आर पॉलिनेटेड बाय द इंसेक्ट्स और विंड के थ्रू, क्योंकि वो पानी के ऊपर आ गए. जैसे लोटस को आपने देखा होगा तैरता हुआ, ऊपर होता है ना, तो इट इज़ पॉलिनेटेड बाय द इंसेक्ट्स, और जो आपके पॉलन ग्रेन्स हैं वो एयर के थ्रू भी आकर इसमें गिर सकते हैं. तो दैट मीन्स दे डू नॉट नीड वाटर फॉर देयर पॉलिनेशन. हालांकि वो उगते हैं पानी में, बट दे डू नॉट नीड वाटर फॉर देयर पॉलिनेशन. Likewise in Vallisneria, फीमेल फ्लावर रीचेज टू द सरफेस ऑफ वाटर, है ना, पानी के सरफेस पे तो वो भी आ गया बाय द हेल्प ऑफ स्टॉक्स. लॉन्ग स्टॉक्स होते हैं जो नीचे रूट होती हैं, ऊपर स्टॉक्स होते हैं, तो आ जाते हैं. बट pollen grains are released on the surface of water, and through the water current they reaches to the stigma. Suppose यहाँ पर ये वाटर है, ये वाटर है, ये ऐसे वाटर है, और यहाँ पर ये कोई फ्लावर इस तरह से आ गए हैं. अब सपोज़ ये वाला अगर मेल फ्लावर है, तो दीज आर द एंथर्स. मैं थोड़ा सा ऊपर बना रही हूँ सो दैट यू कैन ईजिली सी. एंड दिस इज़ द फीमेल प्लांट, है ना, इनसाइड द वाटर, पानी है ये भी, और इसके अंदर स्टिग्मा है सपोज़ कर लो. तो ये थ्रू द एयर भी आ सकते हैं एंड थ्रू द इंसेक्ट्स भी आ सकते हैं. और कई बार ये तो एक तो ये कंडीशन हो गई जैसे मैंने अभी आपको बताई थी कुछ देर पहले वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली में. दूसरी क्या कंडीशन हो सकती है कि सपोज दिस इज़ द वाटर, सपोज दीज आर द वाटर and this is the flower, it is present on through the surface, and this is another flower, it is also present on through the surface, and ये सब पानी पानी है इधर. तो ये वाटर सरफेस पे ही है अभी, है ना. तो ये वाटर सरफेस से क्या होता है, pollen grains अगर सपोज कर लो यहाँ से है, तो दिस pollen grain comes to the फीमेल पार्ट थ्रू द हेल्प ऑफ वाटर करंट. तो वाटर करंट के थ्रू वो डायरेक्टली आ जाता है. तो इस तरह से भी pollen grain होता है. दैट मीन्स फीमेल फ्लावर रीचेज द सरफेस ऑफ द वाटर, एंड द pollen grains आर रीच्ड on the surface of water, and through the water current they reach to the stigma, यहाँ तक पहुँच जाते हैं. तो this is the another method. In sea grasses, female flowers remain submerged into the water. उसमें क्या होता है सी ग्रासेस में कि सपोज ये पानी है,
एंड फ्लावर जो है वो इसके अंदर ही रहेगा, ठीक है, वो प्लांट अंदर ही रहेगा, पानी के अंदर रहेंगे, मेल प्लांट है चाहे फीमेल प्लांट है, और ये इसी के अंदर इनका पॉलिनेशन जो है वो होता है। तो दे रिमेन इनसाइड द वाटर, सबमर्ज मीन्स पानी में डूबे हुए रहते हैं, एंड pollen grain released inside the water. And what are the various properties of these kinds of pollinated plant? ठीक है, I have written in the form of notes also. If I can show you, these are the water pollinated plants, so I have given the notes here. And what are the special properties of the water pollinated plant is, तो I just going to give you some properties. Suppose अब आप अगर water pollinated plant की बात कर रहे हैं तो आपके दिमाग में एक चीज़ आती है कि they are long and ribbon like, that means pollen grains, they are long and ribbon like. Sometimes they are also covered with the mucilaginous covering so that the pollen grain protect itself from the wetting, पानी से गीला होकर सड़ नहीं जाए, है ना, उसलिए they are light in weight so that they can swim easily in the water, and there is no need of nectar, there is no need of fragrance. So these are 2-3 important things which are also very important and asked in the very frequently in the exams. So this is about the water pollinated plants. Water pollinated plants ke these are the characteristic features, and there are so many names of the aquatic plants I have told you, and you also have to remember because they have different kinds of pollination. One, you see that they are coming out of the water, है ना, and simply they pollinate by the insect and the wind. Second one is they come to the surface and also through the water current they are pollinated. And third category is where they are submerged into the water and they get pollinated. तो 3 categories में अगर आप इनको देखोगे तो you can divide it into 3 categories, और आपको इसी तरह से एग्ज़ाम में याद भी रखना है 2 and 3 categories, ठीक है। एक तो सबमर्ज्ड वाले, एक सरफेस वाले हो गए जो वाटर करंट से होते हैं, और दूसरे वाले सरफेस पर आ जाते हैं बट वो विंड एंड एयर से होते हैं नॉर्मल, जैसे कि हमारे प्लांट्स के अंदर पॉलिनेशन होता है। नाउ कम टू द थर्ड एंड लास्ट कैटेगरी, दैट इज़ इंसेक्ट पॉलिनेशन। इंसेक्ट पॉलिनेशन में वाटर पॉलिनेटेड हो गया इधर वाला ये, एंड इंसेक्ट पॉलिनेशन में क्या होगा, दिस इज़ द इंसेक्ट पॉलिनेटेड। इंसेक्ट पॉलिनेटेड मीन्स मेजॉरिटी ऑफ द, बेसिकली अगर मैं बोलूँ आपसे तो मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट आर पॉलिनेटेड बाय द various agents, biotic agents like butterflies, bees, flies, beetles, ants, moths, birds, even bats, चमगादड़ जिसको बोलते हैं वो भी, humming birds, all these are come into this category, ठीक है, pollinating agents की category में आते हैं, they pollinate. And mostly bees are the very dominant biotic pollinators, ये आपको याद रखना है कि bees जो होती सबसे important होती हैं। एंड इवन बिग एनिमल्स आर ऑल्सो पॉलिनेटर्स, जैसे कि प्राइमेट्स में लीमर हो गए, रोडेंट्स हो गए, रोडेंट्स में गिलहरियाँ जैसे आ जाएँ, रैट आ गए, इवन रेप्टाइल्स ऑल्सो, गैको लिजर्ड है, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिजर्ड्स आर ऑल्सो देयर, दे आर ऑल्सो पॉलिनेटर्स, क्योंकि वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर जाते रहते हैं और इन दैट केस वो पॉलिनेशन कर देते हैं, मतलब पॉलन ग्रेन्स यहाँ से वहाँ छोड़ आते हैं। तो दिस फ्लावर्स आर मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर पॉलिनेटर, वो फ्लावर्स बने ही ऐसे होते हैं कि उनका पॉलिनेटर आराम से आ ले। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ एनी फ्लावर इज़ पॉलिनेटेड बाय द बैट, तो दैट मीन्स दैट फ्लावर मस्ट बी बिग इन साइज़, भाई बैट तो बड़ा होता है तो वो फ्लावर के अंदर घुस तो सके कम से कम। एंड दिस फ्लावर ऑल्सो हैव लॉट्स ऑफ नेक्टर और लॉट्स ऑफ पॉलन ग्रेन, क्योंकि चमगादड़ का थोड़े में तो गुजारा नहीं होगा ना, उसको ज़्यादा खाना चाहिए होगा, तो जब तक खाने को नहीं मिलेगा वो वहाँ पर आएगा नहीं। एंड ऑल्सो इट हैव सर्टन काइंड ऑफ स्मेल, एंड बैट्स को मोस्टली गंदी वाली स्मेल पसंद होती है, फाउल सी स्मेल, तो सड़ी सी स्मेल जिन फ्लावर्स के अंदर आती है ना, फाउल ओडर, जिसको आप लाइक भी नहीं करते, तो दे आर ऑल्सो अट्रैक्टेड बाई दीज काइंड्स ऑफ एनिमल, तो वो भी होनी चाहिए सो दैट दे कैन फाइंड आउट द फ्लावर कि भाई कहाँ है वो फ्लावर। तो in that way a flower is also evolved according to their pollinator, and majority of the insect pollinated flowers are large, colorful, that means they look beautiful so that insect get attracted, they have good fragrance so that insect get attracted, and they are rich in nectar so that they can get the food, otherwise वो क्यों आएंगे, केवल देखने तो फ्लावर को आएंगे नहीं, because देयर इज़ समथिंग प्रेजेंट सो दैट दे कैन अट्रैक्टेड बाई इट, या तो स्मेल से अट्रैक्ट होते हैं या उससे कलर से होते हैं। सपोज सम फ्लावर्स ब्लूम्स इन लाइट, तो जो नाइट में फ्लावर होते हैं वो हमेशा वाइट कलर के होते हैं, एंड दे हैव स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस,
कि रात में इंसेक्ट उनको नहीं भी देख पाता है, तो वो वाइट है तो दिखेंगे एंड फ्रेग्रेंस अच्छी है तो वैसे वहाँ पर पहुँच जाएंगे. एंड समटाइम्स फ्लावर आर वेरी स्मॉल, एंड सपोज इफ फ्लावर आर वेरी स्मॉल दे आर प्रेजेंट इन टू द बंचेस. अगर बहुत छोटे छोटे फ्लावर्स हैं तो दे आर इन ग्रुप्स. सपोज ये एक छोटा सा फ्लावर है तो ये बहुत सारे होंगे, क्लस्टर्स में होंगे, बंचेस में होंगे, सो दैट इंसेक्ट्स को एटलीस्ट वो दिख तो जाएँ. एक सिंगल अकेला ऐसे लगा होगा फ्लावर तो कहाँ दिखेगा इंसेक्ट को. तो इसलिए वो फ्लावर का थोड़ा मतलब वो बंचेस में पाए जाते हैं. तो दे हैव गुड स्मेल ऑल्सो, दे हैव फाउल स्मेल ऑल्सो, क्योंकि वैरायटी ऑफ इंसेक्ट्स हैं. कुछ को अच्छी स्मेल अच्छी लगती है, कुछ को गंदी स्मेल अच्छी लगती है, तो उस हिसाब से पहुंच जाते हैं. एंड दे ऑल्सो गेट सम रिवॉर्ड ऑल्सो. रिवॉर्ड मीन्स अब पॉलिनेट करेंगे तो कुछ तो उनको देना पड़ेगा फ्लावर को. तो क्या देगा, ऑफर करेगा उनको, फूड ऑफर करेगा इन द फॉर्म ऑफ नेक्टर, इन द फॉर्म ऑफ pollen grains, so that they came on keep on coming to these flowers and get these flowers get pollinated. And एक इम्पॉर्टेंट सा नाम है, आई एम गोइंग टू राइट इट फॉर यू. ए मॉर्फोफेलस, स्पेलिंग इज AMORPHALLUS, amorph, S, this is S, amorphophallus. Amorphophallus is the tallest flower, अराउंड 6 फीट हाइट है इस फ्लावर की. तो सोचो इसको भी तो कोई पॉलिनेट करने के लिए इंसेक्ट्स ही होंगे ना इनके अंदर. एंड अनदर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ये तो याद रखना है आपको, मॉर्फोफेलस इज़ द टॉलेस्ट फ्लावर जो है वो आपको याद रखना है. 6 फीट के करीब है ना, 6 फीट इसकी हाइट होती है, ऊंचाई होती है. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ जो आपको याद रखना है, देयर इज़ अ प्लांट यक्का, एंड इसके साथ जो इंसेक्ट इन्वॉल्व है दैट इज़ कॉल्ड मॉथ, है ना. मॉथ भी जानते हैं आप. यक्का प्लस मॉथ की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है ना. अगर एक फिनिश हो गया तो दूसरा भी फिनिश हो जाएगा. जैसे कि आपने को इवोल्यूशन देखा है ना, साथ साथ इवॉल्व होते हैं. आप पढ़ते हो को एक्सटिंक्शन, आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी कि साथ साथ ख़त्म हो जाते हैं. बिकॉज दे कैन नॉट कम्प्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर. एंड वाई दिस इज सो, बिकॉज दिस मॉथ दैट मीन जो ये इंसेक्ट है, इसे कीड़ा सा होता है ना, मॉथ आप जानते हो. This insect, what it does, it deposited its eggs into the locule of ovary. Suppose diagrammatically if I want to explain you this thing, suppose this is the flower, ठीक है, ये flower हो गया, मैंने ऐसे बना दिया आपको. इसमें ये बना हुआ है फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ओव्यूल, ओवरी, एवरीथिंग इज देयर. एंड दिस इज सपोज मॉथ, ये मॉथ, दिस इज द इंसेक्ट, मॉथ हो गया ये, this is the insect. What it does, that it deposited, or you can say lays its eggs into the locule of the ovary. It enters in, और यहाँ पर ये अपना एग जो है वो दे देता है ओवरी के अंदर. एंड इन टर्न्स इट गेट्स पॉलिनेटेड बाई द मॉथ, क्योंकि ये अंदर चला आया तो एक फ्लावर से हर फ्लावर में जाएगा. अभी इस फ्लावर में आया, फिर किसी दूसरे में जाएगा, तो इट्स बॉडी इज़ कवर्ड विद द पॉलन ग्रेन्स. इसकी बॉडी पे सारे पॉलन ग्रेन्स लग जाते हैं, बिकॉज ऑल द फ्लोर पार्ट्स आर देयर, है ना. ये सारे पॉलन ग्रेन्स वगैरह सब इसमें होंगे, एंथस वगैरह सब हैं. तो ये अंदर जब आएगा फ्लावर के अंदर, तो ऑब्वियस है कि इसके अंदर क्या होगा, ये सब इसको लग जाएंगे ना अंदर. दिस इज़ अ फ्लावर, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. तो ये सब इसकी बॉडी में लग जाएंगे. ये एग देने के लिए, ले करने के लिए आया, तो बॉडी में पॉलन ग्रेन्स लग गए, फिर ये बाहर भी निकलेगा, है ना. बाहर निकल के गया तो किसी दूसरे फ्लावर में एंट्री की, तो वहाँ भी पॉलन ग्रेन इसने पहुँचा दिए. एंड वॉट हैपन्स नेक्स्ट इज़ दैट दीज लार्वा, इस एग्स हैच होंगे एंड लार्वाज कम आउट. एंड व्हेन दीज लार्वाज कम आउट फ्रॉम द एग, जब ये लार्वा भी एग से बाहर निकलेंगे, जब बड़े होंगे फ्लावर के बाहर निकलेंगे, तो दे ऑल्सो हेल्प इन द पॉलिनेशन प्रोसेस. ये भी क्योंकि इनकी बॉडी में भी पॉलिनेशन के लिए वो सब पॉलन ग्रेन्स कोटेड हो गए, तो ये भी अगले फ्लावर पे जाएंगे तो वहाँ भी ये पॉलिनेशन करके आएंगे. तो इन दैट वे द लार्वा ऑफ द मॉथ कम्स आउट ऑफ द एग्स एज द सीड्स स्टार्ट्स डेवलपिंग. जैसे, और अब निकलते कब हैं, जब सीड बनने शुरू होंगे तब निकलेंगे, अदरवाइज तब तक ये इसके अंदर ही रहते हैं. तो दिस इज़ अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ को इवोल्यूशन, और यू कैन से को एग्जिस्टेंस, जहाँ पर यक्का प्लांट एंड मॉथ दे कांट सर्वाइव विदाउट ईच अदर. द यूनिक एग्जाम्पल ऑफ दिस यू कैन से plant life, or you can say this biology. So this is all, and in the NCRT they have given quite more examples, few more examples are there, so you have to read it yourself. Okay students, so you have to read it, all these examples they have given, and make a short note also. I will give you these notes in the form of PDF so that you can remember it. Thank you.